Hello friends. So after completion of mechanism of contractile muscles, or you can say muscle contraction mechanism, and then we move to a bones, or you can say skeletal system. Okay, so in the previous video lectures we discussed about the muscles and muscles, type of muscles, and muscles theory. Okay, muscles contraction theory. And now our posture and our body is completely based on the skeletal system. Okay, with the muscles, but it is about skeletal system. So today we move about the skeletal system. Ki now what are the types of skeletal system, and what bonds are, or which bonds are arranged in a particular manner, and they form our posture good, or our body. Okay, now the skeletal system is of two different parts. First is the axial skeletal system, and second is appendicular skeletal system. Axial skeletal system means your central axis. आपकी central axis में जितने भी skeletons आते हैं, they are axial skeletal systems, and their appendages or appendicular means जो appendages के साथ related है, they are appendicular skeletal system. So in today's lecture we discussed about the axial skeletal system, not the appendicular. Appendicular skeletal system के बारे में हम next lecture में बात करेंगे. In this lecture we just discussed the axial skeletal system. So in the total number of bones which are present in a total adult human body, it is 206. Means 206 bones are present in human body. So we calculate this, okay, with the help of different bonds and name of different bonds. After completion of this chapter, you know the all bonds of our body, 206 bond, total bonds of your body. कि आपको पता होगा इस चैप्टर के कंप्लीशन के बाद कि आपकी बॉडी के अंदर कितने बॉन्ड्स हैं, एंड कौन कौन से बॉन्ड्स हैं विद देयर नेम्स. ओके, सो स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले एक्सियल स्केलेटन के अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं, मीन सेंट्रल के अंदर. तो सबसे पहले आता है आर स्कल. ये पूरा जो हेड रीजन है, जो स्कल बनाता है, ये स्कल आता है सेंट्रल एक्सिस में. देन योर रिब्स, जो आपकी रिब्स है जो लंग्स को प्रोटेक्ट करती है, रिब्स आती है, एंड जो रिब्स है वो कनेक्टेड है विद स्टर्नम, सो स्टर्नम आता है. दिस इज द स्टर्नम, देन रिब्स, देन स्कल, एंड द मेन पार्ट की जिसकी वजह से आप खड़े हो सकते हैं, इट इज द वर्टिब्रल कॉलम. So there are four different parts of axial skeleton. The first one is skull, then vertebral column, then sternum and ribs. Okay, फिर से बोल रहा हूँ कि skull, then vertebral, ये skull हो गया. जो skull किसके ऊपर है, vertebral column के ऊपर हमारा पूरा skull है. Then आगे वाला पार्ट जिसमें sternum है, the chest bone, you can say chest bone, and then ribs जो दोनों साइड है, जो आगे से sternum के साथ और पीछे से vertebral column के साथ अटैच है. Okay, so these are the axial bonds or axial skeletal system. Now axial skeletal system में सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं our skull. Skull है वो दो different parts से बना हुआ है. The upper part which form a cranial means जो प्रोटेक्ट करता है ब्रेन को. ओके, जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, ये रीजन जो है उसका, ये पूरा रीजन, अपर रीजन, स्टार्ट फ्रॉम दी दिस अपर रीजन इज फॉर्म अ क्रेनियल रीजन, एंड दिस लोअर रीजन इज फॉर्म अ फेशियल रीजन. ये जो पूरा पार्ट है ये फेशियल रीजन है, और उसके ऊपर वाला जो पार्ट है वो है क्रेनियल मीन्स जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है. नाउ हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं. क्रेनियल मीन्स ये रीजन में 8 बॉन्स है, 8 डिफरेंट बॉन्स है, और नीचे फेशियल वाला जो पार्ट है जिसके अंदर 14 डिफरेंट ब्रेन है, सॉरी बॉन्स है. ओके, सो 14 plus 8 is equal to 22. So 22 bonds are present in skull region. मीन्स जो ऊपर वाला पूरा पार्ट है जिसके अंदर 22 बॉन्ड्स है, इसके अंदर और 7 बॉन्ड्स हैं जो हमने इस 22 में काउंट नहीं किया है, वो हम करेंगे. ओके, सो 22 प्लस 7 हो गया 29. ओके, वो हम इसके साथ काउंट अभी नहीं कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि उसको मैंने इसमें लिखा नहीं है. ओके, ना स्कल के अंदर 22 बॉन्ड्स है, जो ऊपर वाला क्रेनियल फॉर्म करता है, नीचे वाला फेशियल फॉर्म करता है. अब ये क्रेनियल कौन कौन से 8 है, सबसे पहले वो देखते हैं. तो सबसे पहले हो गया पैराइटल बॉन्ड्स. पैराइटल बॉन्ड्स है 2 जो आपके कान के ऊपर है, ये दिस इज द पैराइटल बॉन्ड्स. ये पैराइटल बॉन्ड्स है, ये एक तरफ है, ये दूसरी तरफ है, ये 1, ये 2, ये हो गए पैराइटल बॉन्ड्स. ओके, 2 होते हैं. देन अ टेम्पोरल बॉन्ड,
टेम्पोरल बोन आर ऑल्सो दो, जो पीछे की तरफ होता है ये और ये पैरेटल बोन के ऊपर टेम्पोरल बोन, ओके। देन ये पैरेटल, देन टेम्पोरल बोन, देन टेम्पोरल बोन के बाद है ऑसिपिटल, जो आपका पीछे वाला पार्ट, ये पूरा एक सिंगल बोन है, तो पूरा फॉर्म करता है ऑसिपिटल पार्ट को। ये ऑसिपिटल बोन के नीचे दो बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऑसिपिटल बोन का ही पार्ट है, जिसको बोलते हैं ऑसिपिटल कॉन्डाइल। नाउ दिस ऑसिपिटल कॉन्डाइल डिसाइड की मूवमेंट ऑफ स्कल। ये ऑसिपिटल कॉन्डाइल है, ये दो जो वर्टिब्रल कॉलम की फर्स्ट वर्टिब्री पे डिपेंडेंट है। नाउ हमारे अंदर दो ऑसिपिटल कॉन्डाइल है, वी आर डाइकॉन्डाइलिक स्कल, वी हैव डाइकॉन्डाइलिक स्कल, सो वी मूव ओनली 180 डिग्री। और बर्ड्स, रेप्टाइल्स, इसके अंदर एक ही ऑसिपिटल कॉन्डाइल है, मींस बॉल लाइक स्ट्रक्चर इन ऑसिपिटल बोन, सो एक ही कॉन्डाइल है, दैट्स व्हाई दे कैन टर्न देयर हेड अप टू 360 डिग्री, मींस वो यहाँ से स्टार्ट करके फिर से घुमा के यहाँ तक ला सकते हैं 360 डिग्री। हमारा सिर्फ 180 डिग्री ही मूव होता है बिकॉज ऑफ टू ऑसिपिटल कॉन्डाइल। हमारे अंदर ऑसिपिटल बोन है, उसके नीचे दो बॉल लाइक स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं ऑसिपिटल कॉन्डाइल। सो ऑसिपिटल बोन इज दी प्रेजेंट इन योर बैक साइड। सो ऑसिपिटल बोन सबसे पहले पैराइटल, देन टेम्पोरल, देन ऑसिपिटल बोन। नाउ फ्रंटल बोन, ओके, फ्रंटल बोन मींस ये जो आपका पूरा बोन है, इट स्टार्ट फ्रॉम योर दिस रीजन अपर साइड ऑफ आई, यहां से स्टार्ट करके यहां तक है, ओके, ये हो गया फ्रंटल बोन, एक ही है सबसे बड़ा, ओके, ये दिस इज योर फ्रंटल, फ्रंट साइड है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड फ्रंटल बोन। देन टेम्पोरल, पैराइटल, टेम्पोरल, फ्रंटल, ऑसिपिटल, एंड दो रह गए, ओके। एक है एथमोइड, एथमोइड इज नीचे बीनीथ दी फ्रंटल बोन, फ्रंटल बोन के नीचे है एथमोइड, एंड ये जो आपके फ्रंट पैराइटल है, ओके, पैराइटल बोन के नीचे होते हैं स्फीनॉइड बोन, ओके। सो एथमोइड एंड स्फीनॉइड है वो बाहर से आपको नहीं दिखते, वो नीचे से देखना पड़ता है, स्कल को नीचे करके आप स्फीनॉइड एंड एथमोइड देख सकते हैं, ये बोन एथमोइड एंड स्फीनॉइड जो एक एक है। सो फिर से बोल रहा हूं, सबसे पहले पैराइटल दो, देन टेम्पोरल टू पैराइटल, टू टेम्पोरल, देन एक फ्रंटल, एक ऑसिपिटल, एक एथमोइड एंड एक स्फीनॉइड, 8 हो गए, और सबके लोकेशन मैंने आपको बताया, ओके। नाउ these are the cranial bones, 8. Now facial bones are 14 facial bones हैं, ओके। सबसे पहले है वोमर, जो आपके नाक के पास है, नाक के ये दोनों नाक के बीच में जो ये है, दोनों नेजल चैम्बर है, दोनों नेजल चैम्बर, उसके बीच में जो ये पार्ट है, इट इज वोमर, ये वोमर है, ओके। देन मैक्सिला मीन्स जो आपका अपर जो बनता है वो दो बोन से बनता है, ये एक हो गया एक साइड का, ये दूसरे साइड का हो गया, दिस इज द मैक्सिला, यू कैन से अपर जो, मैक्सिला को अपर जो बोल सकते हैं। अब वोमर एक ही है, ये दोनों नजल चैम्बर के बीच में जो ये वोमर है, ओके। देन मैक्सिला जो अपर जो फॉर्म करता है, अपर जो दो बोन से बनता है, ये एक बोन ये दूसरा बोन, दोनों बोन फॉर्म करके मैक्सिला बनता है, जो अपर जो फॉर्म करता है। देन मैंडिबल इज अ लोअर जो। अब लोअर जो में जो अटैच है विद दिस मसल्स, जो मसल्स से अटैच है एंड फ्री है, जो इजीली मूव कर सकता है, इट इज अ सिंगल बोन, ये कंप्लीट सिंगल बोन है जो लोअर जो का है, ओके। लोअर जो का ये जो बोन है मैंडिबल, इट इज फ्लेक्सिबल एंड अ सिंगल बोन, ये कंप्लीट सिंगल बोन है, ये नीचे वाला, ओके। देन ये मैंडिबल की जब बात कर रहे हैं हम, मैंडिबल के नीचे एक ऐसे यू शेप में, ये यू हो गया यू शेप में, वो मैंडिबल को सपोर्ट करने के लिए एक होता है हायोइड बोन, जिसको बोलते हैं हायोइड बोन, इट इज अ सिंगल बोन विच सपोर्ट दिस मैंडिबल, ये मैंडिबल को सपोर्ट करता है ऐसे, इट इज प्रेजेंट लाइक दिस, सो दे सपोर्ट द मैंडिबल, सो मैंडिबल एक है, उसके नीचे हायोइड है, ओके। नाउ नाजल दो है, जो दोनों नाक के बॉन फॉर्म करते हैं, नाजल बॉन, वोमर के नीचे, वोमर बीच में है, दोनों नाजल बॉन है, ओके, नाजल बॉन।
Then पैलेटाइन इज ऑल्सो प्रेजेंट बीनीथ द नाजल बॉन, ये नाजल बॉन के नीचे और मैक्सिला के ऊपर जो है पेनेटल है, सॉरी पैलेटाइन है। ओके, देन लैक्रिमल मीन्स ये आंख फॉर्म करता है जो लैक्रिमल, ये पार्ट जो है, दो लैक्रिमल होंगे दोनों आंख के नीचे, ये लैक्रिमल बॉन है ये। ओके, ये लैक्रिमल बॉन। देन zygomatic इज ऑल्सो टू विच इज नियर द लैक्रिमल बॉन, जो मैं आपको बता नहीं सकता, मेरा स्कल की डायग्राम मैं इसके बाद रखूंगा आपको, जो यू कैन इजीली ऑब्जर्व दिस डिफरेंट बॉन्ड्स, जो आप डायग्राम में देख सकते हो। मैं इसके बीच में एक रखता हूँ, अभी थोड़ी देर में आएगा। सो यू कैन सी द डायग्राम ऑफ स्कल। ओके, सो स्कल का डायग्राम देख लीजिए, जिसमें फेशियल बॉन्ड भी अलग होंगे और स्कल बॉन्ड भी अलग होंगे, तो यू कैन आइडेंटिफाई। सो zygomatic and then inferior nasal cochlear, there is also two. Inferior nasal means nasal bone के नीचे दो cochlear होंगे यहाँ पे। nasal inferior nasal means नाक के नीचे inferior nasal two cochlea sorry conch two nasal conch is present beneath the nasal bone. So total हो गए 14. Now between this skull facial and स्कल, इन दोनों के बीच में है इंटरनल ईयर। नाउ एक हायोइड बोन जो एक आया, नाउ इंटरनल ईयर के अंदर ईयर ऑसिकल्स हैं, दे आर 6 इंटरनल ऑसिकल्स, जो कान के अंदर बोन्स है 3, इंकस, मैलस एंड स्टेपस। ओके, मैलस, इंकस एंड स्टेपस, देयर आर 6 बोन, जिसको बोलते हैं ईयर ऑसिकल। They are 6. So hyoid is 1 and second is ear ossicle, which are not included in both the facial and skull diagram. So 22 के अंदर वो included नहीं है, तो 22 plus 7 होगा। So 6, एक यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3 हो गए 6, मैलस, स्टिम्पस और इंकस, मैलस एंड स्टिम्पस। जो इसके नेक्स्ट वाले चैप्टर नंबर 21 में अब देखने वाला है। ओके, सो 6 ईयर ऑसिकल, एक हायोइड बोन, क्लियर। नाउ दिस इज ऑल अबाउट द स्कल एंड फेशियल, मीन क्रेनियल एंड फेशियल दोनों हो गए स्कल। नाउ द नेक्स्ट वन इज वर्टिब्रल कॉलम। सो वर्टिब्रल कॉलम, it is from a long elongated body for the they are made up of different vertebrae and they form a long elongated bone. Okay, and with the different regions, according to regions their vertebrae are divided into different types. Okay, now vertebral column start with the occipital bone, जो आपका पूरा कंप्लीट हुआ है। ऑसिपिटल बॉन जो पीछे क्या है, ये बॉन ऑसिपिटल यहाँ से स्टार्ट होता है वर्टिब्रल कॉलम। सो फर्स्ट वर्टिब्रे इज कनेक्ट विद द ऑसिपिटल बॉन, और यू कैन से ऑसिपिटल कॉन्डाइल, जो मैंने अभी आपको बताया कि द फर्स्ट वर्टिब्रे इज बाइंड विद द ऑसिपिटल बॉन। बाइंड मींस वो कनेक्टेड है ऐसे। देन उसको एटलास वर्टिब्रे बोलते हैं। दे कंप्लीट, दे हैव द होल स्कल, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एटलास वर्टिब्रे। सो एटलास वर्टिब्रे के नीचे से there are 26 different vertebrae are there, and according to their name they are divided into different 5 regions. So the first is C means cervical. Cervical means 7 vertebrae, जो ये neck region की है, ये neck region की जो है it is 7 vertebrae, it's called cervical vertebrae. So ये neck के बाद यहाँ पे neck खत्म होती है, तो उसके पीछे आता है chest region, thorax region. सो थॉरैक्स रीजन के जो वर्टिब्रेज हैं वो है 12. सो सर्वाइकल वर्टिब्रीज आर द यूनिट ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, जिसको वर्टिब्रे बोलते हैं. ओके, सो वर्टिब्रल कॉलम मेड अप ऑफ वर्टिब्रीज, डिफरेंट वर्टिब्रीज. सो द फर्स्ट 7 वर्टिब्रीज आर प्रेजेंट इन नेक रीजन, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड सर्वाइकल वर्टिब्रीज, जो है 7. देन thoracic vertebrae which are 12 in number. So they are start from this point. सर्वाइकल वर्टिब्रे खत्म होती है जहां से, वहां से वो स्टार्ट होती है कमर तक. ओके, सो इट्स कॉल्ड thoracic vertebrae. देन कमर तक आती है 5 वर्टिब्रे, इट्स कॉल्ड लंबर वर्टिब्रे.
लमर वर्टिब्रेज 5, सर्वाइकल 7, देन थोरेसिक 12, देन कमर ऊपर आती है 5 वर्टिब्रेज मींस पीछे वाला रीजन। सो 5 लमर 5 वर्टिब्रेज, देन सैक्रल वर्टिब्रेज व्हिच इज अ लार्ज फ्यूज वर्टिब्रे, वो एक ही है बट फ्यूज है। फ्यूज मींस वो स्मॉल 5 वर्टिब्रेज फ्यूज होके एक वर्टिब्रे फॉर्म करती है, जिसको बोलते हैं सैक्रल वर्टिब्रे। एंड देन है कोकेशियल वर्टिब्रे which is also a fused vertebrae, जो डिफरेंट स्मॉल वर्टिब्रेज 4 वर्टिब्रेज को फ्यूज करके बनती है। कोकेशियल वर्टिब्रे 4 वर्टिब्रे को फ्यूज करके बनती है एंड सैक्रल 5 को फ्यूज करके एक बनती है। सो ओके, सो यू कैन राइट C7 T12 L5, दिस इज द फॉर्मूला कि जो आप इजीली याद रख सकते हैं। C7 T12 L5 S1 सैक्रल 1 एंड कोकेशियल। C यहाँ पे 2 बार है, तो पहले सर्वाइकल है एंड लास्ट वाला कोकेशियल है, कोकेशियल 1 है। ओके, जो 4 डिफरेंट वर्टिब्रेज को फ्यूज करके बना है और सैक्रल है वो 5 डिफरेंट वर्टिब्रेज को फ्यूज करके बनता है। टोटल हमारे 7 + 12 मींस 19, 19 + 5 24, 25 sacral and 26 coccygeal. 26 vertebrae are present in vertebral column. Clear? ये हो गया vertebral column जो हमको a particular posture provide करता है। Now sternum bone. Sternum bone is a single bone which is chest bone, जो मैंने अभी आपको बताया कि sternum है वो chest bone है, एक ही है। Okay. Now ribs, which anteriorly connect with sternum and posteriorly they connect with vertebral column, or you can say vertebrae. Okay, now ribs are 12 ribs, rather 12 pair है ribs की। Now इसमें थोड़ा डिफरेंस है, क्या है कि the first 7 vertebrae, पहली जो 7 1 2 3 4 5 6 7, पहली 7 vertebrae है, first 7 vertebrae, they are fused anteriorly with sternum and posteriorly with thoracic vertebrae। ये पीछे से thoracic vertebrae के साथ कनेक्टेड है एंड आगे से sternum के साथ कनेक्टेड है। फर्स्ट 7 ribs, पहली 7 ribs है वो anteriorly sternum के साथ, posteriorly vertebral column के साथ या vertebrae के साथ, जो thoracic vertebrae है। Now listen carefully, ribs है 12 pair और vertebrae है thoracic vertebrae है 12 pair, means each and every vertebrae जो है पीछे sternum vertebral column की, वो सभी 12 vertebrae से 12 ribs निकलती है आगे की साइड, लेकिन उसमें से 7 जो है फर्स्ट 7 they are fused with sternum, लेकिन 8, 9 and 10th जो है वो पीछे से vertebral column से निकलती है, लेकिन आगे वो फ्यूज होती है with the 7th ribs। पीछे निकलती है वो vertebrae से 8, 9 and 10 जो निकलती है पीछे, मींस पीछे से वो कनेक्टेड है vertebral column या vertebrae से, लेकिन आगे से वो कनेक्टेड है with the 7th vertebrae with a cartilaginous bond। वो कार्टिलेजिनस फ्यूजन से, कार्टिलेजिनस टिश्यू से कनेक्ट है 7th के साथ। देन 11 and 12 हो गए। सो 11 and 12 आर फ्री वर्टिब्री और यू कैन से स्विम वर्टिब्री, वो फ्रीली स्विम करती है ल्यूमेन के अंदर, बॉडी के अंदर, वो सिर्फ कनेक्टेड है विद द पोस्टीरियर साइड, एंटीरियर साइड दे आर फ्री। ओके, सो दे फॉर्म अ रिब्स केज, वो एक रिब्स केज फॉर्म करते हैं फॉर प्रोटेक्शन ऑफ लंग्स एंड हार्ट। ओके, वो हार्ट एंड लंग्स को प्रोटेक्शन फॉर्म करते हैं, दे फॉर्म अ रिब्स केज। क्लियर? सो इंटीरियर साइड द 7 vertebrae are fused with sternum, okay, and posteriorly vertebrae, you can say thoracic vertebrae. Then 8, 9 and 10 ribs are posteriorly fused with vertebrae, but interiorly they are with 7th rib. And 11 and 12 vertebrae, they are arises from vertebral column, or you can say bind with the vertebral column, anterior side, and posterior side they are bind with the they are free, they are not bind with anyone, they are free. Okay, so this is your ventral side, this is your dorsal side. Okay, so ये एक याद रखना, ये ventral side है, ये dorsal side है। so vertebrae है वो 12 vertebrae, वो 12 pair of ribs, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, दोनों साइड से वो आगे की तरफ रिब्स को फॉर्म करती है। ओके, रिब्स बनाती है। सो 12 pair of ribs, they form a ribs cage.
ओके, सो ये हो गया पूरा एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन के अंदर 12 पेयर ऑफ रिब्स मींस हो गया 24। अब टोटल करते हैं, प्लस स्टर्नम 1 प्लस 1 स्टर्नम 24 प्लस 1 25 प्लस 26 वर्टिब्रल कॉलम 26 मींस 25 प्लस 26 is equal to 51। 26 plus 24 50 plus 1 sternum 51, then 22 of skull 22, इसका टोटल हो गया 73। ओके 73 प्लस हायोइड बोन प्लस ईयर ऑसिकल 6, so 73 plus 7 is equal to हो गए 80। so these are the axial skeleton 80 bones। ये हो गए axial skeleton 80 bones। जो पूरे bones जितने भी 80 bones हैं उन सब के नाम मैंने आपको बता दिए, उन सब के नाम आपको बता दिए, उनके फंक्शन और लोकेशन बता दिए। ओके, सो ये हो गया पूरा axial skeleton। ओके, बहुत ही धीरे से गया हूं मैं, इजीली सबके लोकेशन आपको बताया है। और इफ यू हैव डाउट जस्ट रिवाइज द वीडियो, आप दूसरी बार देखें। ओके, और इसके बाद स्कल का डायग्राम भी है, वो भी देख लीजिए। ओके, देन यू नो कि कौन कौन से स्कल में कौन कौन से बोन कहाँ पे है। वर्टिब्रल कॉलम और रिब्स में स्टर्नम में प्रॉब्लम नहीं आएगा, जो भी है वो स्कल के बारे में देख लीजिए। स्कल भी इजी है, जो मैंने लोकेशन आपको बता दी है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सियल स्केलेटन सिस्टम। इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हम देखेंगे एपेंडिकुलर स्केलेटन। ओके, सो आज यहाँ तक।